الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی تو علی بات تو آج کا جو ہمارا سبق ہے مطلب آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی سنانا تھا اور ان سوالات کے جوابات آپ کو لکھ لے کر کیا ہے سنانا تھا. ٹھیک ہے تو آپ تمام لوگوں نے یاد کیا ہے؟ جی میم. یہاں پر کتنے لوگ حاضر ہیں؟ حسینہ، حریثہ، صفیہ، یاسمین. آپ چاروں نے یاد کیا سوالات کے جوابات؟ جی میم. جی تو میں ایک ایک سے سوالات کروں گی، آپ لوگ جواب دیجیے. تو کون ہے حسینہ؟ آپ سنائیے. جی ہمارے میم. رسول صلی اللہ علیہ بغیر دیکھ کر سنانا ہے. جی میم. جی میم. جی جی میم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ جی ہمارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور عبداللہ بھی. جی میم صحیح ہے نا میم؟ جی نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، تو ان کے بارے میں بولیے. جی میم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد ہے. جی میم. مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے. جی آپ ایسے بولے تو بھی کوئی حرج نہیں. جی میم. تو اور ایک کیا ہے بولتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے اور آپ کا دوسرا نام احمد بھی ہے، مطلب دو احمد نام بھی ہے ہے. ہمارے رسول جی کے، میم. ایسے جی میم. بولے. احمد بھی. جی میم. احمد بھی ہے میرے کو. جی میم. اس کے بعد ہمارے رسول مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں پیدا ہوئے. جی میم. اچھا دوسرا سوال چھوڑ کر تیسرا سوال سنائیے. آپ کے ماں باپ کا نام بتاؤ. آپ جی صلی میم. اللہ کے جی ماں میم. باپ. جی میم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں کا نام ہے آمینہ اور ابا کا نام ہے عبداللہ. جی میم. جی ماشاء اللہ. اچھا تو آپ کس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے؟ جی میم 40 برس کی عمر تھی میم. جی ماشاء اللہ. تو نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ جی میم. چوری نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. جی جی میم. اور اللہ کی عبادت کرنا، چوری نہیں کرنا. اس میں جی میم. آپ ایسا مطلب نارملی آپ یاد کیے ہوں گے نا سبق کے سوالات؟ جی میم صحیح نہیں کری تھی میم. بس کچھ بھی نہیں، اس میں نارملی آپ ایسے پڑھیے کہ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا. مطلب نبی ہونے کے بعد آپ نے مکہ والوں سے یہی کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کو سجدہ کرو، کسی بت یا خبر کو سجدہ نہ کرو، پیر ولی جی میم. بزرگ سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، پھر وہی بیمار کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے. کسی کے کیا ہے مال چوری نہ کرو اور کسی کا کیا ہے ناحق نہ کھاؤ. جی میم. اس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کہا. جی. اب جھوٹ نہ بولو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ. اس طرح سے بولیے آپ ایک مرتبہ پھر. جی میم. پھر سے بولوں میم؟ جی بولیے. جی میم. ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر چوری کرنے کو منع کیا. جی جی میم. چوری کرنے کو منع کیا اور کسی کا حق کو دبانا بھی منع کر دیا. اور کسی کو نہ پکارنے کو کہا میم. صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا میم. جی جی میم. اللہ صرف کسی سے بھی نہ مانگو، صرف اللہ ہی سے مانگو. جی جی.
अल्लाह और ही बीमारी देता है और वही अपन को अच्छा करता है। जी। हुँ, रोज़ी देता है मैम, तो अल्लाह ही रोज़ी देता है और हुँ, हुँ, अल्लाह ही रोज़ी देता है, वही बीमारी देता है, वही अच्छा जी, करता है, वही कल औलाद देता है। हाँ, मैम औलाद देता है, जी। नॉर्मली आपको उसमें डे टू डे याद करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। इबादत उसी ना को करो, जी, सजदा करो, बिल्कुल। उसी से दुआएँ माँगो, इतना बस जी, याद रख लिए तो काफ़ी है आप। और क्या जी है मैम। किसी पीर वली बुज़ुर्ग से ना माँगो। ना माँगो, जी मैम, सिर्फ़ सजदा करना है तो अल्लाह ही को सजदा करना है, बस। जी, जो भी माँगना है सिर्फ़ अल्लाह ही से माँगना है क्योंकि अल्लाह ही क्या है, हम जो कुछ भी माँगते हैं वो अल्लाह ही देता है ना, अल्लाह तो ही देता इसी है। वजह से। तो हमको वही औलाद देता है, वही रोज़ी देता है, वही बीमारी देता है, फिर वही अच्छा करता है। इस तरह आप याद रख लीजिए। जी मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है? आपकी बात आपकी बात किसने मानी, किसने मानी और किसने किसने नहीं नहीं मानी? नहीं मानी? जी मैम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना जो माने थे वो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिया बन के उनके साझेदारी दिए थे मैम। जो नहीं माँगे थे वो काफ़िर बन के रह गए मैम। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग करते थे मैम, सताते थे मैम। गलती गलती से। हाँ, सही बोले, बस ये है जो अच्छे लोग थे उन लोगों ने आपकी बात मानी। ठीक है मैम, जी। ये बोलिए आप, ये पॉइंट बोलिए कि जो जी लोग मैम। अच्छे थे, जो अच्छे जो अच्छे थे अच्छे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और एक अल्लाह के 3 पैर आगे फिर जो लोग ये थे जो वो है, वो आपके दुश्मन हो गए और आपको क्या है दुश्मन हो गए और आप सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम को सताने लगे और उनके साथियों को भी सताने लगे। जी, जी। इसी तरह क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दुनिया में किस तरह फैली? दुनिया में हाँ मैम, उनकी सहाबियों से और उनके सहाबियों से फैली मैम, सहाबियों से और आपके बाद आपके सहाबा से यानी आपके साथियों ने साथियों से साथियों की पूरी कोशिश से जी मैम, साथियों की कोशिश से क्या है दीन पूरी क्या है दुनिया में फैला दुनिया में है। दीन फैली मैम। जी, इसके बाद ये तो हो गया। तो आप फिर एक बार क्या करिए लास्ट में क्या मैम? आप फिर दूसरी वाली बात सुनाते ना, जी मैम, तो उन्हें सुनाने तक आप फिर एक मर्तबा रिवाइज़ कर लीजिए। जी मैम, उसके बाद आखिर में एक बार फिर अच्छा जो गलतियाँ निकले ना उसको सुनाइए, ठीक है? जी मैम, इंशाअल्लाह। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। तो और जो है नेक्स्ट कौन है हरीसा? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पहला सवाल है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है और उनकी दूसरा नाम अहमद भी है। आप हमारे आप मशहूर शहर अरब में मशहूर देश अरब में अरब है और उस अरब में एक मशहूर शहर मक्का में पैदा हुआ। जी, आप इतना लंबा नहीं बोले जैसे आप सिर्फ़ नॉर्मल इतना भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हम सब लंबी तफ़सील बोलने जाएँगे तो मेन चीज़ भूल जाते हैं। तो माशाल्लाह आप अच्छी कोशिश करें, आप वो सब बोले, मगर आप इतना भी बोल दीजिए मतलब आप कहाँ पैदा हुए? मतलब हमारे रसूल मशहूर सल्लल्लाहु अलैहि शहर वसल्लम मक्का मक्का में। में पैदा हुए। जी। जी, अच्छा तीसरा सवाल आपके माँ-बाप का नाम बताओ? दूसरा भी याद करी। हाँ, सुनाइए 4 सिमतों के नाम। जी, मशरिक, मगरिब, शुमूल, जुनूब, शुमाल, जुनूब अच्छा शुमाल, जुनूब। ये उर्दू में है मगर अब जो हम पढ़ रहे हैं किताब में वो क्या है फ़ारसी में है। क्या है बोल अच्छा, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अच्छा, अच्छा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन ऐसा उत्तर है दक्षिण। इसका सवाल का जवाब। अच्छा, ऐसा लिखो बोलते हैं। पूरब, जी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, ऐसा लिखना है वो
मैं लिख कर डालूंगी, समझिए वक्त नहीं मिलेगी जैसे नहीं डाल सकी तो मैं आप उर्दू लोग में ऐसा समझ लिख कर ले वो सकते हैं। बोलता है। हाँ हाँ, लिख ले उर्दू में भी सकते लिख हैं, लीजिए। याद और रहेगा। ये अभी यहाँ किताब में देखिए अब हमें क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ कि बहुत ये दूर पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ जी। तो वही तो इस हिसाब से हमें क्या है 4 सिमतों के नाम लिखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर दक्षिण जी, याद रहेगा। जी, आपके माँ बाप का नाम बताओ। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना है, अमीना था। जी, आप किस उम्र में नबी हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष की उम्र में नबी और रसूल बने। जी, नबी होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा? आप नबी के बाद मक्का वालों को सिर्फ अल्लाह की इबादत बंदगी करने को कहा, किसी दूसरे बुद्ध, वली, बुजुर्ग या पत्थर के इबादत सजदा करने को रोक दिया। जी, सिर्फ एक अल्लाह को ही सजदा करने के लिए कहा था। और सिर्फ अल्लाह अभी मैंने हसीना से मतलब कहा था, उस तरह से आप बोली मतलब क्या है, सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें और क्या है किसी को सजदा ना करें, जो भी मांगना है उसी से मांगे सिर्फ और किसी अल्लाह से पीर वली मांगे। बुजुर्ग से ना मांगे, क्योंकि वही औलाद देता है, वही ऐसा आप लोग वही समझते हैं। बीमारी देता है, वही अच्छा करता है, वही औलाद देता है जी। फिर एक बार बोलिए आप। फिर आप एक मर्तबा मैं बोलती हूँ, सुनिए, और जो दूसरी वाली बात है वो भी सुन लीजिए, ताकि इस तरह से आप लोग जवाब दें कि सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें और क्या है उसी को सजदा करें और जो भी मांगना हो सिर्फ अल्लाह से मांगे, किसी पीर वली बुजुर्ग से ना मांगे, कि किसी पीर वली बुत को चाहे सजदा ना करें, क्योंकि वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है और वही अच्छा करता है। जी ठीक है जी, सुनाइए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी को सजदा करो, किसी बुद्ध या पत्थर या वली और बुजुर्गों को सजदा ना करो। वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है, अच्छा करता है। ठीक है ना? जी माशाल्लाह, आपकी बात किसने मानी? और भी थोड़ी बातें, मतलब चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी पर जुल्म ना। किसी का हक ना दबाओ। जी, एक बार बोलिए, चोरी ना करो, जुल्म ना करो, झूठ चोरी ना ना करो, बोलो। जुल्म ना करो, झूठ ना बोलो, किसी का हक ना मारो। इंशाल्लाह ये 2 बार पढ़ लिया। जी, एक दो मरतबा पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद रखना कि अल्लाह के नबी हमारे मतलब जब जिहादत का जमाना था, उसके बाद जब नबी बनकर आए, तो उसके बाद आपने क्या क्या किन किन चीजों की सब दावत कुछ दी। मालूम है मैम, क्या बोले थे उर्दू के अल्फाज में जमाना बोले तो थोड़ा हाँ, तो वही जमाना का बोलो। मतलब उर्दू सीख रहे ना, तो जरूरी है हमें आपको सीख रहे, तो ये बात हमें ऐसे ही अंदाज में सीक्वेंस में सीखना जमाना है, जरूरी है। इंशाल्लाह वो पढ़े तो ही आता है। सही बात जी जी, तो आप इन अल्फाज को और जुमलों को याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, है। और जो इस सबक में है ना, उसको अच्छी तरह उसी अंदाज में याद करिए आप लोग। हाँ हाँ वही। जी ठीक है, आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी? अच्छे लोगों ने उनकी आपकी बात मान ली, बुरे लोगों ने आपका नहीं मानी और दुश्मन हो गए। आपके लोग और आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख भी देने लगे। जी माशाल्लाह, आपके बाद आपकी बातें किस तरह दुनिया में फैली? आपके बाद आपके बातें आपके साथियों ने दुनिया में फैलाई। जी, साथियों की कोशिश से हाँ, फैली। साथियों की कोशिश से फैली। ठीक है माशाल्लाह, फिर भी आप लोग अच्छी कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों को उर्दू नहीं आती थी, आप लोग इस तरह कोशिश कर रहे हैं तो
बारकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला और आपके इल्म में इजाफा करे। जी नेक्स्ट कौन है? सफिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहला सवाल, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। आप मक्का शहर में पैदा हुए हैं। अच्छा, आपके माँ बाप का नाम बताओ। आपके अम्मा का नाम आमिना, बाप के नाम अब्दुल्ला। ठीक। किस उम्र में आप नबी हुए? 40 बरस के थे जब आप नबी और रसूल बना दिए। नबी और रसूल बने। जी, नबी होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा? आप सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो और किसी को सजदा ना करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जो भी मांगो अल्लाह से मांगो। पीर वली बुजुर्ग से ना मांगो। खबरों पर सजदा ना करो। जो भी देता है अल्लाह ही देता है। जी जी जी। वही अच्छा करता है, वही औलाद देता है। हाँ, और थोड़ी बातें हैं। और किसी इसका पर जुल्म ना करो। हक ना दबाओ। हम्म चोरी चोरी ना करो। करने को मना किया है। जी झूठ बोलने से मना किया। हम्म, जी किसी पे जुल्म ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी का हक ना दबाओ। जी जी किसी पे जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो। जी। अच्छा, आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी? आपके साथियों ने तो आपकी बात मान ली। जो बुरे लोग हैं वो दुश्मन बन गए और बहुत सताने लगे। आपको बहुत सताने लगे। जी, तो आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी, ये जरा नेक्स्ट। जी जी मैम। एक बार आप सुनाइए ना, ये मैं नहीं सुनी आपका आंसर। आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी? अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए। बुरे लोग दुश्मन बन गए और सताने लगे। जी माशाल्लाह। आपकी बातें किस तरह दुनिया में फैली? साथियों की कोशिश से दुनिया में पहले। जी नेक्स्ट कौन है? यास्मीन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। जी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और अहमद भी थे। मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए थे। जी आपके माँ बाप का नाम बताओ। अम्मा का नाम आमिना था, अब्बा का नाम अब्दुल्ला था। जी किस उम्र में आप नबी बनाए गए? 40 साल की उम्र में नबी बने थे, रसूल भी बने थे। आप नबी होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा?
नबी होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, इससे बुजुर्ग से ना मांगो, किसी सजदा ना करो। लोगों से कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, लोगों से कहा कि जी बोलिए। किसी पीर वली बुजुर्ग से ना मांगो, वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही अच्छा करता है। झूठ ना, किसी चोरी से चीजें चोरी से ना चुराओ, जी ना बोलो। जी अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी? अच्छे लोगों ने मांगी, बुरे लोगों ने दुश्मन हो गए। जी आपकी बातें किस तरह दुनिया में फैली? के सब सिर्फ बोलिए। आपके बाद लोगों के साथियों से फैली, लोग एक साथियों से फैली, आप लोगों की कोशिशों से। कोशिश से फैली। जी माशाल्लाह। हो गई ना सॉरी तौलीबात ने सुना दिया ना? मैम मैं और एक बार सुनाऊं मैम? हसीना। हाँ जी मैंने कहा था ठीक है। जी मैम मैं सुना बोलिए देती। जी मैम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? जी मैम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद है और उनका दूसरा नाम भी अहमद है। वो मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। जी आपके माँ बाप का नाम बताओ। जी मैम, अम्मा का नाम आमिना है और अब्बा का नाम अब्दुल्ला है मैम। उनको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी मैम। नबूवत मिली, नबी और रसूल बने थे। जी मैम। अपने लोगों से क्या कहा? जी मैम, एक अल्लाह की बंदगी करो, किसी वली, बुजुर्ग और पत्थरों की इबादत ना करो, खबरों पे सजदा ना करो, झूठ ना बोलो, किसी की चीज को चोरी से ना लो और किसी के हक को ना दबाओ। और अल्लाह ही रोजी देता है, अल्लाह ही औलाद देता है। बीमारी अल्लाह ही बीमारी देता है और शिफा भी वही देता है मैम। जी मैम। जी माशाल्लाह। आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी? जी मैम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो जो अच्छे लोग हैं अल्लाह उनकी बात मान ली थी और बुरे लोग बुरे लोग ने कौन बोलते? जी मैम, बुरे लोगों ने तो उनके दुश्मन हो गए जी, और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताने लगे और उनके सहाबियों को भी। आपके बाद आपकी बातें किस तरह फैली? जी मैम, आपके बाद आपके सहाबियों के और साथियों के कोशिशों से दीन ने पूरी दुनिया में दीन फैली थी। जी माशाल्लाह अच्छा पढ़े। वो आपकी शुरू में जरा गलतियां थी इसलिए मैंने आपको दोबारा पढ़ने के लिए कहा। जी और मैम, जी मैम, बाकी मैं थोड़ा सही कर ली मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी ठीक है। आप लोग भी क्या है माशाल्लाह अच्छा पढ़े। आप लोगों की भी कोशिश बहुत अच्छी थी। बगैर देख के सुनाना बहुत बड़ी बात है और वो भी आप लोगों को माशाल्लाह मतलब आप लोग तो अभी सीख रहे हैं उर्दू मगर फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। बहुत खुशी हुई सुनकर। तो ये दूसरा सवाल आप लोग लिख लीजिए। 4 सिमतों के नाम मैं यहाँ लिखती हूँ। जी मैम। जी दिख रहा है आप लोगों को? पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन। मैम पूरब मैम, पा वाव रा पा मैम। जी जी पे वाओ रे पे। जी मैम। पूरब। पश्चिम पे चीम हे मीम।
उत्तर उत्तर अलीफ ते रे, ते को तजदीद है उत्तर। दक्कन दाल मैम काफ को तजदीद है नून दक्कन। मैम पश्चिम पेचिम है दो चश्मे वाला है। है जी जी मैम पश्चिम है मीम पश्चिम। नेक्स्ट आगे उत्तर अलिफ अलिफ त रा मैम उत्तर। ते को तजदीद है रे उत्तर। अलीफ से उत तेरे तर उत्तर। दक्कन बोलते ईस्ट में नॉर्थ साउथ क्या बोलते हैं? दाल काफ नून दक्कन। दाल काफ नून दक्कन है ना मैम? दक्कन जी हाँ दक्कन। ये पूरब इंग्लिश में भी बोलो ना, पूरब के माने ये ईस्ट है मैम। पूरब जी पूरब मतलब ईस्ट, ईस्ट है मैम। वो मुझे नहीं कोई मालूम के बारे पश्चिम में। मतलब वेस्ट, अच्छा अच्छा। ये उत्तर इंग्लिश मतलब उत्तर दक्कन सेम है ना हारिसा? उत्तर दक्कन उत्तर उत्तर दक्कन उत्तर तीसरा है दक्कन चौथा है। तो इंशाल्लाह मैम। वो आप लोगों को आसानी होने के लिए क्या है, कल इंशाल्लाह मालूम करके कल के क्लास में बोलेंगे। हाँ नॉर्थ साउथ मैम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैम समझ में आ रहा है मैम? जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह याद भी कर लीजिए। फिर कल देखेंगे उर्दू में भी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ऐसा लिख लीजिए। फिर इंग्लिश में कौन कौन सा है वो मैं इंशाल्लाह मालूम करके आप लोगों को बोलती हूँ, ठीक है? जी अभी मैम एक मिनट कर देना। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जी मैम लिख लिए मैम। तो हमारा नेक्स्ट जो सबक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है मदीना, सफा नंबर 12 पर। मदीना मदीना ये क्या है? मदीना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जिस शहर में गए थे उसका नाम मदीना है। जी तो देखिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मैम मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के अल्लाह हुक्म के से हुक्म से एक है। मक्का छोड़ दूसरे शहर में यहीं बैठना तुम्हारा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर
दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना है। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, आपको और आपके साथियों को जगा दी, जान और माल से साथ दिया। जी बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से वहां तक पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे तालिबात पढ़ेंगे तो बस नहीं होगा, इसलिए। जी मैम, जी सबक मैम, यहाँ तक लिखना एक भी है पेज मैम? मैम, एक पेज है ना मैम सबक? नहीं, पूरी तालिबात पढ़ने तक मतलब वक्त नहीं होगा ना, बोल के मैं यहाँ से यहाँ, ये भी शेर भी है यहाँ। जी मैम। पूरा मतलब पढ़ा तो सब राजी हैं। पढ़ा दो मैम। जी, पढ़ा दो मैम, पढ़ा दो थोड़ा ठीक है। आसान। जान और माल से साथ दिया। मदीने ही से इस्लाम हर जगह फैला। उधर मदीने ही से इस्लाम हर जगह फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यही हुआ। यही मतलब मदीना में हुआ। आपकी कब्र शरीफ यही है। मदीने में खजूर के बाग बहुत हैं और बहुत किस्म की खजूरें होती हैं। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं फिर एक मर्तबा पढ़ती हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। मदीना, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा तौबा उनको जान से मार डालने का इरादा कर लिया, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। उस शहर का नाम मदीना है। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, आपको और आपके साथियों को जगा दी, जान और माल से साथ दिया। मदीने ही से इस्लाम हर जगह फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक मस्जिद बनाई। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी यहीं हुआ। आपकी कब्र शरीफ यहीं है। मदीने में खजूर के बाग बहुत हैं और बहुत किस्म की खजूरें होती है। मदीना बड़ी बरकत वाली बस्ती है। दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये मदीना जो सबक है वो मुकम्मल क्या है, अच्छी तरह से पढ़ लेकर आना है। और आप लोगों के इसमें अगर कोई हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए, इंशाल्लाह फिर से एक बार बताओगे। खाना आपको जी, कोई कुछ सवाल करना चाह रहे हैं या कुछ डाउट है तो कुछ किसी को कुछ सवाल है? ठीक है, आप लोग ये पढ़कर आइए। इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह सवाल आपके जवाब लिखे जाएंगे, फिर उसको याद करना होगा इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے मैम। سبحانक اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہاں